गुड आफ्टरनून पीपल। बढ़िया हालचाल है सबके। ओके, थर्मोडायनामिक्स बाकी था तो उसका जेई नीट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ओके, थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहला आइडिया तो हीट ट्रांसफर वाला था कि जब भी सपोज दो बॉडीज हैं, ये सपोज बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, एंड दिस इज अ हॉटर बॉडी, दिस हैज गॉट मोर हीट एनर्जी and body B has got less heat energy. Now if they are supposedly placed in contact, what will happen now? Heat will transfer from a body having higher heat energy content to a body having lower heat energy content. मतलब heat energy कैसे transfer होगी? A से B, and ये कब तक होगी? So heat energy flows from body A to body B कब तक? Till thermal equilibrium is achieved, till the temperatures of both bodies become same, till the temperatures of both bodies become equal. This position is called thermal equilibrium. This situation is called thermal equilibrium. And thermal equilibrium के साथ जुड़ा हुआ है zeroth law. Alright. So what does zeroth law say? This is called the zeroth law of thermodynamics. तो zeroth law ये कहता है कि suppose मेरे पास तीन systems हैं. This is system A, this is system B, and this is system C. Now A और B के बीच में मैं नॉन कंडक्टिंग वॉल लगा देता हूं. This is called an adiabatic wall. I'm sure you remember adiabatic wall does not allow the bodies, the systems to exchange heat energy with each other. In short, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते. ऑन दी अदर हैंड, ये बीच में जो ये वॉल है, दिस इज अ डायाथर्मिक वॉल, और यू कैन कॉल इट अ कंडक्टिंग वॉल. इन शॉर्ट, A can exchange heat energy with C, B can exchange heat energy with C. A and B cannot exchange heat energy with each other. Then after some time we see that even if I replace this adiabatic wall by a diathermic wall, A and B do not exchange heat energy with each other. And thus the zeroth law states that when two systems are in thermal equilibrium with a third system, so you can see here A and B are individually in thermal equilibrium with system C, then both systems are also in thermal equilibrium with each other. तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. एंड इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन दिस स्टेट, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए is equal to temperature of system B is equal to temperature of system C. So तीनों की कौन सी क्वांटिटी सेम हो गई? टेम्परेचर. सो टेम्परेचर तीनों क्वांटिटीज का सेम हो गया. हमने टेम्परेचर के बारे में हीट में काफी देखा था, अलग अलग स्केल्स वगैरह देखे थे, बट दिस gave us the basic idea of a physical quantity which is called temperature. तो ये हो गया आपका zeroth law. And then we go on to the most important idea of this chapter. You know, this chapter, thermodynamics, is actually the interconversions between heat energy and work. So हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया होगा वर्क. So let us find out what work is. I think everybody knows from chapter 5 that work done. Achha, I can take this off also. Work done is force into displacement. All right. So we would like to find कि अलग अलग situations में work done कितना होता है, क्या होता है. So work done, I'll derive a general formula for work.
and then we'll go on to see different processes में क्या work होता है. So work done in mechanics is W is force F into displacement dx. I am going to put this formula to use here. Suppose मेरे पास एक आध पिस्टन होता, एक आध कंटेनर होता, सिलेंडर टाइप्स, एंड यहां पे पिस्टन लगाया हुआ है, ओके, एंड नीचे से मैंने हीट एनर्जी देने का प्रबंध किया है. नाउ टेकिंग दिस हीट एनर्जी, डोंट यू अग्री दिस सिस्टम विल एक्सपांड. तो यहां से लेट अस से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है पिस्टन का. लेट्स कॉल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन एज dx. So let the pressure be P, volume be V, area of the container is A. Now let us say at a certain situation, at a certain point, let the piston expand by dx. Let the piston be displaced by dx. Let the piston be displaced by dx. So गैस, ये जो गैस है अंदर, ये गैस पिस्टन को दबा रहा है. So this is work done by the gas. All right. So work done, yeah, by the system is how much? I'll use the general formula F into dx. Do you also know force is pressure into area? So this is P into A dx. But area into dx, isn't it dV, which is change in volume? You can call it delta V, you can call it dV, whatever you want to call it. And as a result, my work done becomes P dV. एंड अगर तुम्हारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, सो इफ गैस पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेट्स, थ्रू मेनी स्टेट्स, तो टोटल वर्क डन विल बी एज एन इंटीग्रल. सो यू कैन ऑल्सो राइट वर्क इज इंटीग्रल P dV. कहां से लेकर कहां तक? इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक. सो आपका P डेल्टा V एंड इंटीग्रल P dV बात वही है, बस ये एक छोटा सा वर्क होता है जिसमें प्रेशर एंड छोटा चेंज इन वॉल्यूम. एंड अगर बहुत सारे स्टेट्स हो रहे हैं तो विल बी इंटीग्रल P dV फ्रॉम VI टू VF. आई होप यू आर जॉटिंग दिस डाउन. एंड सपोज देयर इज वन थर्ड थिंग, आई कैन टेक दिस ऑफ. It is called indicator diagram. You know, a graph, yeah, a graph of pressure P versus volume V is called, भाई ग्राफ की बात हो रही है, is called an indicator graph या indicator diagram. So अगर तुमको कोई बोले in the indicator graph ये हो रहा है, so you will understand it's a graph of pressure versus volume. So supposedly let me draw a diagram. This is volume, this is pressure. So let us say body goes from this point to this point. This is volume V1, this is volume V2, this is pressure P1, and this is pressure P2. Then ladies and gentlemen, very important, ऐसे सिचुएशन में हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? सो द वर्क डन, द एरिया अंडर द पीवी ग्राफ gives the work done. So if I were to show you in this, तो ये ग्राफ के नीचे का जो एरिया है ये रहा,
ये एरिया would be the work done by the system. And do not forget, even for one instance, that work done by the system is positive, whereas work done on the system is negative. Alright, so sign convention याद रखना पड़ेगा आपको. Sign convention वैसा ही हीट में भी है, हीट एनर्जी में भी. वर्क डन बाय द सिस्टम, आई लव बाय द सिस्टम is considered positive, and work done on the system will be taken negative. So अगर सिस्टम वर्क करता है, अब जैसे लास्ट केस में हमने देखा सिस्टम एक्सपांड हुआ, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, देन इट विल बी टेकन पॉजिटिव. जबकि अगर सिस्टम कंप्रेस हो जाता है, कोई ऊपर से धक्का मारता है, तो दिस इज द वर्क बीइंग डन ऑन द सिस्टम एंड दैट विल बी टेकन नेगेटिव. ऑलराइट, सो प्लीज रिमेंबर दैट. नाउ लेट्स गो टू डिफरेंट प्रोसेसेस. अगर आपने इतना लिख लिया है तो हम दूसरी प्रोसेसेस के बारे में बात करें. Are we good to talk? Okay. 4 मेन प्रोसेसेस के बारे में हमको बात करनी है. आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबेरिक प्रोसेस. कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके. किसका? But quasi-static process is a process in which you are giving small changes in state, small displacements दे रहे हो. That is the most important idea कि quasi-static is actually an idealistic idea कि जिसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, हर स्टेट इक्विलिब्रियम का होता है. That is what is a quasi-static process. पर हमको वो थियोरेटिकल आइडिया का इस एप्लीकेशन वाले फंडे में कोई काम नहीं है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज अच्छा, उससे पहले वो सारे प्रोसेसेस लेने से पहले हमें लेना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इफ Q amount of heat energy is given to the system and work W is being done by the system, then, भाई ladies and gentlemen ध्यान में रखिए, Q minus W चाहे कुछ भी हो जाए will be constant. और ये कांस्टेंट इज व्हाट Q minus W is delta U, where delta U is the change in internal energy of the system, of the gas. And change in internal energy, I'll reiterate further, delta U is final internal energy minus initial internal energy. Delta U is UF minus UY. So the amount of heat energy that the gas takes minus the work done by the gas W is equal to the change in internal energy of the gas. So acha, if changes are small, yeah, then you can write this equation as dq minus dw is du, or dq is du plus dw. dw we know it as pdv. So dq, this is a more refined equation which many times shall be used. So dq is du plus pdv. अच्छा, एक छोटी सी नोट के जरिए, ये आ तो गया अपना फर्स्ट लॉ, पर एक छोटी सी नोट के जरिए
मैं इंटरनल एनर्जी के बारे में भी दो टूक बातें कर दूं कि इंटरनल एनर्जी, नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, ये बात हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी देखी थी कि द टोटल सम ऑफ द इंटरनल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी is called the internal energy of the gas. So the sum of the Ke and potential energy of the molecules of the gas is called internal energy of the gas. And ये internal energy जो है वो बाहर के किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है मात्र टेम्परेचर पे. सो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक्चुअली, ऑफ द सिस्टम. अगर तुम्हारे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अगर सिस्टम का प्रोसीजर का कुछ भी होता है प्रोसेस बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी. UF विल बी इक्वल टू UI एंड एज अ रिजल्ट डेल्टा U विल बी हाउ मच? 0. ओके, अच्छा, हैव यू रिटन दिस मच एंड कैन वी गो? Yeah, absolutely. That is what is most important. कि internal energy. So internal energy is a state function. चाहे बीच में कोई भी सारे स्टॉप्स आए, वो डिपेंड नहीं करेगा कौन से पाथ से लेके जा रहे हो, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा. इट डिपेंड्स ओनली on the initial state and final state and not on the path. Taken by the gas to reach from one state to another. And I am sure you still remember the equation for internal energy. Internal energy of 1 mole of ideal gas I hope you remember. It is 3/2 आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अज्यूम कर रहे हैं यहां पे हम. सो इट इज 3/2 RT. म्यू मोल्स के लिए 3/2 म्यू RT. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. अच्छा, एंड आई लेट मी गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया फॉर इंटरनल एनर्जी. कोई भी प्रोसेस हो जाए, चाहे फॉर एनी प्रोसेस, याद रखिए इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन म्यू, अच्छा, डेल्टा यू इज म्यू CV डेल्टा T. Irrespective of any type of process, internal energy, because it is a state function, it is equal to mu, in change in internal energy delta U is mu CV delta T, where CV, you know, is the specific heat at constant volume. Do I need to tell you that specific heat at constant volume is FR/2, where F is the degrees of freedom? Do you want me to write that? Just reiterating. Yes, sir. Can I take this off? Yes, sir. Okay. So ये हमने लास्ट सेशंस में किया था. आई थिंक लास्ट सेशन में, काइनेटिक एनर्जी वाले सेशन में ही किया था ये. तो CV, अच्छा, फॉर अ गैस, if there are F degrees of freedom, then CV, ये फॉर्मूला से भली भांति वाकिफ है हम, is FR/2. CP is CV plus R, which is F/2 plus 1 into R, and gamma, adiabatic constant, CP by CV, or gamma is 1 plus 2 by F. Okay, I think it will be really helpful
टू राइट दीज इक्वेशंस डाउन, बहुत बार हमको गैसेस यूज किए जाते हैं, तो उसका CV क्या है, CP क्या है, गामा क्या है, यूज करना पड़ता है. सो माइट एज वेल टेक इट अप. ओके, कैन I move on? Yes, sir. Okay, so I am moving on. जी. Sir, delta Q is equal to mu CP delta T भी होगा ना sir? हाँ बिल्कुल होगा. Why not? You can also say that because P delta V will be mu R delta T, and you can also write that up. No problems. So you can also write if you want. जरूरत पड़े तो. I am taking this off. Okay. Yes, sir. सर इसमें और कोई नया टॉपिक है? नया टॉपिक तो कोई नहीं है. हम खास करके इसमें मतलब वही हाँ बस हमने जो हीट इंजन कार्नो इंजन नहीं किया था, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर, उसको हम विस्तार में देखेंगे इस बार. वैसे तो हमने उसको देखा ही था. कार्नो इंजन को विस्तार में देखते हैं। कार्नो इंजन को तो विस्तार में देखा ही है, पर उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है. तो इसमें हम अलग अलग टाइप के क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं वो सब देखेंगे. फेयर इनफ? Yes, sir. Okay, and now I am going on to processes. Thermodynamic processes. One of my favorite processes. ISO. by chronology में चलता है, isothermal पहला आता है. Okay, so here the temperature remains constant. So temperature constant है सब. And according to Boyle's law, Boyle ने अपने को ये आइडिया दिया था. Here P into V is constant. I should write it in blue. Blue. PV is constant for this particular idea. And भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड करता है. सो हियर ऑल्सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी is 0. Very well. So delta U is 0 because internal energy depends on temperature, and by the first law of thermo, delta Q is equal to delta W. Q minus W is delta U, और delta U तो 0 है. So don't you agree that Q will be equal to W? So in an isothermal process, the total heat energy that the system takes goes in doing useful work. Change in internal energy नहीं होती, internal energy जैसा था वैसा ही रहता है, and here change will be 0. So this is the idea of first law in isothermal process. But हमको work done भी तो find करना है. Work done में भाई हम derive करने नहीं जाएंगे. Work done, very good. V1 से लेकर V2 तक लेट अस से, एंड P की जगह मैंने कहा था मैं डिराइव करने नहीं जा रहा हूं, फिर भी मैं डिराइव करने जा रहा हूं. मैं अब इससे आगे डिराइव नहीं करूंगा, हमने इसको डेरिवेशन को ऑलरेडी देखा हुआ है. सो वर्क डन लेडीज एंड जेंटलमैन इज म्यू आर टी नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग इज द लॉग टू द बेस E, एंड उसको अगर लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करें तो 2.303 म्यू आर टी लॉग टू द बेस 10. भाई कभी कभी V2 और V1 दिया नहीं होता तो P2 और P1 इस्तेमाल करना पड़ता है. तो 2.303 म्यू लॉग टू द बेस 10 P1 बाय, ये सारे इक्वेशन वर्क डन के हैं. काइंडली जॉट देम डाउन. मैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में P वर्सेस V का ग्राफ दिखा दूं कि किस तरह का ग्राफ होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में जब PV इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. सपोज ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है. नॉट एग्जैक्टली अ स्ट्रेट लाइन बट समथिंग लाइक दिस. ओके, नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट अ स्मॉल कर्व. तो
this would be the graph of P versus V in an isothermal process. Alright, and as you rightly guessed, इसके नीचे का जो एरिया तुम आप फाइंड करोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा. बराबर. ये ग्राफ याद रखना, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक जो पकड़ रहा हूं ए डायाबैटिक प्रोसेस, उसमें भी ऐसा P वर्सेस V का ग्राफ बनाने वाला हूं. आई एम टेकिंग दिस ऑफ. द सेकेंड प्रोसेस कमिंग अप, it's also an important process. It's called an adiabatic process. By adiabatic, I mean that the system does not take heat energy from outside and it does not give any heat energy from itself. So here the total amount of heat energy remains constant. So number 2, adiabatic process. अपने लिए आइसोथर्मल और एडायाबैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि आइसोबेरिक आइसोकोरिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज आर ऑन द मेन आइडिया. सो हियर द सिस्टम डज नॉट टेक हीट एनर्जी और गिव अवे हीट एनर्जी, गिव आउट हीट एनर्जी. सो the total heat energy remains constant. इसका मतलब है डेल्टा Q या Q is equal to 0. This is the main idea of an adiabatic process. And जैसे हमने आइसोथर्मल में देखा था कि PV is constant, तो adiabatic में क्या constant होगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का क्या होगा रिश्ता? We know that very good. For an adiabatic process, बहुत ही बढ़िया इक्वेशंस है. P into V raised to gamma is constant. I don't need to say that gamma is your adiabatic constant. अच्छा, इस इक्वेशन पे एक सेकेंड नजर तो डालो. Can I say that pressure is proportional to 1 by V raised to gamma? Agreeable? तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा. If volume increases, pressure will decrease. That depends on the value of gamma. गामा क्या वैल्यू रखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ये पहला इक्वेशन, ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिश्ता. मैं प्रेशर और टेम्परेचर का रिश्ता भी लाया हूं आपके लिए. हमने ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया था. P1 माइनस गामा इंटू टी रेज टू गामा इज कांस्टेंट. ब्यूटी. अब ये मत पूछना सर याद रखना पड़ेगा. बिल्कुल रखना पड़ेगा यार. वैसे नहीं रखना चाहते हो तो आप यहां पे डिराइव भी कर सकते हो. आपको ये याद है तो डेरिवेशन में अगर 1 मिनट वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो. ये आंसर आ जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. सो P रेज टू 1 माइनस गामा इंटू टी रेज टू गामा इज कांस्टेंट. और यहां पे भी टेम्परेचर और प्रेशर का रिश्ता दिखाई दे रहा है, प्रोपोर्शनल टू. भाई बात याद रखी जाए कि ये 1 माइनस गामा है. गामा एक्चुअली ग्रेटर देन 1 होता है. तो इफ आई वर टू राइट दिस, कैन आई राइट दिस एज P रेज टू, ये 1 अपॉन है. कैन आई राइट दिस लाइक दिस? एंड कैन आई टेक द माइनस इनसाइड? सो T रेज टू गामा proportional to P रेज टू गामा माइनस 1. सो ये दोनों ही पॉजिटिव है. एज अ रिजल्ट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, pressure also will increase. So if pressure increases, temperature also increases. And finally third equation, temperature और volume का, T into V raised to gamma minus 1 is constant. I call it as TV gamma minus 1. अच्छा यहां पे जी सर हमने बोर्ड्स में तो वो P1 V1 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू गामा करके डिराइव किया था. नहीं, हमने P इज इक्वल टू म्यू आर टी बाई वी करके इसको डिराइव किया था ये सारों को. तू चाहती है मैं तेरे को डिराइव करके बताऊं ये वाला और ये वाला? नो सर.
अच्छा, ओके। तो यहां पे क्या, आई एम श्योर यू नो पीवी इज म्यू आर टी। तो व्हाट इज पी, इजंट इट म्यू आर टी बाई वी? तो उसको यहां लगा डाला म्यू आर टी बाई वी, तो म्यू और आर तो कांस्टेंट है, टी इंटू वी रेस टू गामा माइनस वन, ये आ गया तेरा। उसकी जगह v इज इक्वल टू म्यू आर टी बाई पी यहां लगा डाला, तो p 1 माइनस गामा इंटू टी रेस टू गामा आ गया, ये रहा। सो एज सिंपल एज इट गेट्स। अच्छा, यहां पे टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर v रेस टू गामा माइनस वन, गामा पॉजिटिव है याद रखिएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर, घटेगा। अरे शाबाश, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर, भाई याद रखिएगा, ये तीनों बातें याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ए डायबिटिक। अच्छा, चलते चलते ए डायबिटिक का आपको ग्राफ बता दूं क्या, एंड उसको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करेंगे आइसोथर्मल वाले के साथ। मैं तो अनुग्राफ बताऊंगा। तुमको याद है आइसोथर्मल कुछ ऐसा था, ए डायबिटिक ऐसा है। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, वन ऑफ द लवली ग्राफ्स। ये ब्लू कलर का है ए डायबिटिक, एंड ब्लैक कलर का है आइसोथर्मल। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, किसका ग्राफ ज्यादा स्टीप है? ए डायबिटिक, ए डायबिटिक का ग्राफ स्टीपर है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। अच्छा, कौन से ग्राफ के नीचे ज्यादा एरिया एसोसिएटेड होगा? सो याद रखिएगा, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन ड्यूरिंग ए डायबिटिक प्रोसेस। बराबर है, लिख लीजिए, इसको आगे बढ़ा देते। ओके, तो ग्राफ तो देख लिए ए डायबिटिक आइसोथर्मल वगैरह के। अब जैसे वर्क डन आइसोथर्मल में देखा था, वर्क डन ए डायबिटिक में भी देखना है। सो द वर्क डन in an adiabatic process, well, I seriously hope you remember the equations. Work P1 V1, भाई गामा गामा गामा, मैं जानता हूं तुझे लैम्बडा पसंद है। एंड अगर टाइम टेम्परेचर के फॉर्म में चाहिए तो म्यू आर। वेरी वेल, वेरी वेल। अच्छा, हम वो फर्स्ट लॉ को लगाना तो भूल ही गए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एवरीबडी नोज डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बट यहां पे डेल्टा क्यू क्या है? जीरो। सो डेल्टा डब्ल्यू इज माइनस डेल्टा यू। इसका मतलब अगर तुम्हारा वर्क डन बाय द सिस्टम है, पॉजिटिव है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी घटेगी। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जिसको हम एक्सपांशन एक्सपांशन कहते हैं, ए डायाबैटिक एक्सपांशन, then internal change in internal energy is negative लिखने की बजाय internal energy decreases, and if work is done on the system, adiabatic compression, then internal energy will increase. Okay, you want me to write that? Okay, I'll write this here. Okay, no problem. Keep this in mind, please. So if work is done on the system, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए डायाबैटिक कंप्रेशन, then internal energy increases. Okay, and now I'm going to take this off, people.
मैं एडियाबैटिक प्रोसेस उड़ा करके, आप चाहें तो वो लिख दे, वो साइड वाला, मैं ये साइड वाला उड़ा देता हूं। आई होप आपने ये लिख लिया है। ओके, थर्ड प्रोसेस कमिंग अप विच इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक नंबर 3। And in an isochoric process, the volume of the system remains constant. So here, the volume of the system remains constant. अगर volume constant है तो what will be the change in volume, people? Zero. Okay. Now I'm taking all that off. So delta V, change in volume, is 0, and as a result हमारा वर्क डन भी कितना होगा? 0. Very well. PV is mu RT. Thank you. So change in volume delta V is 0. So work done delta W, which is P delta V, is also 0. And by the first law, delta Q is equal to delta U plus delta Q is equal to delta U. अब डेल्टा W ही 0 है तो डेल्टा Q इज डेल्टा U। मतलब जितनी भी एनर्जी आप सप्लाई करोगे गैस को, दैट विल ऑल गो इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंड दिव्यलाल मेरे से मांग रहा था कि ग्राफ बताओ इसका, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। If you see carefully, can you see? Pressure change हो रहा है, but volume is constant. Volume at point 1 is same as volume at point 1. That is V. So volume is not changing. Indicator diagram is a straight line, and as a result, how much will be the area under this graph? 0. है ना? Area under this graph is 0, which proves again that work done is again 0. Fair enough. So this is the PV graph of an isochoric process. Let's go on. Let's go fourth and last process. कौन सी आ रही है? Isobaric process number 4. Yeah. Isobaric में pressure remains constant. Okay. Isobaric में pressure is constant. Number 4. And अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आई थिंक चार्ल्स लॉ गिव्स अस द आइडिया. सो हियर द प्रेशर of the system remains constant, and according to Charles' law, at constant pressure, Pressure is directly. volume directly proportional to T, Volume is directly proportional. or time या temperature. And T is equal to constant. So V by T is constant. Also, अगर आपको वर्क डन चाहिए तो उसी इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस PV is mu RT को, प्रेशर कांस्टेंट है, आई कैन राइट P डेल्टा V is mu R delta T, and thus work done W is P delta V, which is mu R delta T. And if I were to show you the graph, अच्छा इसमें वो डालने का कोई मतलब नहीं है किसका, फर्स्ट लॉ इट्स द सेम थिंग, डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट इंडिकेटर डायग्राम अगर मैं आपके लिए बनाऊं, Horizontal line. oh yes sir, ब्लू कलर में बना रहा. वो मैन, सो दिस इज वॉल्यूम V1, दिस इज वॉल्यूम V2, 1 से 2 में जा रहा है, एंड ये आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है.
एंड इसके नीचे का एरिया विल गिव यू वर्क डन. डू यू अंडरस्टैंड कितना सारा एरिया एसोसिएटेड होगा इसके साथ? सो अगर कंपेयर करने जाओ आइसोथर्मल एडियाबैटिक वालों से इसके साथ, डोंट यू एग्री इसका सबसे ज्यादा एरिया एसोसिएटेड है, उससे कम आइसोथर्मल का, उससे कम एडियाबैटिक का, और सबसे कम आइसोकोरिक का, प्रैक्टिकली जीरो. सो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबेरिक is greater than work done during isothermal, which is greater than work done during adiabatic, which is greater than work done during isocoric. बहुत ही सुंदर इक्वेशन सेटअप हुआ है, देखिए जरा. सो वर्क डन इन आइसोबेरिक इज मैक्सिमम, followed by work done during isothermal, followed by work done during adiabatic, and followed by work done during isocoric. Is this agreeable, people? Okay. And finally, I am going to see what is a cyclic process. Cyclic process मतलब बॉडी एक स्टेट से, सिस्टम एक स्टेट से शुरू करता है, घूम फिर के बहुत सारे स्टेट से पास होने के बाद वो उसी स्टेट पे वापस आ जाता है. दैट इज कॉल्ड एन a cyclic process. I hope you remember that. Do you? Yes, sir. When the system goes through a number of processes and finally comes back to its initial state, it is called a cyclic process. And cyclic process में because initial state is final state, so initial energy will be final energy. So what is change in internal energy? Zero. As initial state is equal to final state, so UI initial internal energy is equal to UF, and therefore delta U, which is UF minus UI, is equal to 0. This is what is a cyclic process. उसमें हमेशा याद रखना डेल्टा U जो है वो 0 होगा. अच्छा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी देख ही लेते हैं, लगे हाथों. रिवर्सिबल प्रोसेस में मैं ग्राफ के जरिए, डायग्राम के जरिए ही बात कर लेता हूं. यू नो, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेज पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेट, आप ए से बी गए, इस तरह कुछ प्रेशर कुछ वॉल्यूम था, ये इस तरह के स्टेट्स आए, और अगर आप बी से ए वापस आते हैं और वही स्टेट्स आते हैं, तो दिस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ऑलराइट, जो स्टेट्स ए से बी तक आने में गए, वही स्टेट्स बी से ए तक आने में वापस मिलेंगे अपने को, तो दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ऑन द अदर हैंड, वेल, ऑल प्रोसेसेस मेजॉरिटी इन रियल लाइफ आर इरिवर्सिबल. सेम टाइप का ग्राफ अगर मैं इरिवर्सिबल का बनाऊं, जैसे यहां से यहां गए वो ए से बी, अब जब बी से ए वापस आएगा ना, तो अब वो अलग अलग स्टेट से आएगा. वाओ. सो ए से बी तक जाने में जो स्टेट्स आए, क्या बी से ए तक आने में वो स्टेट्स वापस मिलेंगे हमको? नहीं. सो दिस is what is called an irreversible process, and the net work done will be the area under this particular graph. This minus this will give you the net work done. This is the irreversible and reversible processes. Any doubts so far? अच्छा, अगर तुम देखना चाहते हो यहां से यहां तक गया सिस्टम, कितना एरिया एसोसिएटेड था, the area under this whole curve, black curve, and तुम यहां से बी से वापस ए पे आए तो कितना एरिया एसोसिएटेड था under the blue curve?
You understand? Yes, sir. So what will be the net work? Won't it be work from A to B minus work from B to A? तो इतना बचा ना? Yes, sir. Okay? नहीं बचा. अच्छा, before I forget, let me tell you important gammas and all that. Usually गामा वगैरह दिया होता है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं. For monoatomic gas, ये तो क्या है, जरूरत पड़े अपने को. For monoatomic gas, CV is 3R by 2, CP is 5R by 2, and gamma is 5 by 3. For diatomic gas, अब यहां पे हम नॉर्मल टेम्परेचर ही कंसिडर करेंगे. CV, Equal to 5R by CP, CP equal to 7R by 2. and therefore gamma, या 1.4. ओके, ये दोनों ही यूजुअली जरूरत पड़ती है, बाकी कुछ और जरूरत नहीं पड़ती. तो ये दोनों का आप लिख लीजिए तो काम खत्म हो जाए. आई थिंक हमको अब न्यूमेरिकल्स पे चढ़ जाना चाहिए. क्या आप रेडी हैं जी? अगर इसमें हमको यहाँ का जो रेस टू पावर होता है उसको कैसे? वो भी एक आध दो करके बताऊंगा, फिर मजा आएगा, है ना? हाँ सर, क्योंकि लॉगरिथम नहीं है ना हमारे पास. हाँ बिल्कुल, तो याद तो रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, किस तरह वर्कआउट होता है, क्या होता है करके. आपको लॉग्स एटलीस्ट जो मेन लॉग्स हैं 20, 30, 40, 50 याद है, हमने एक बार याद भी किया था. हाँ सर, 1 से 10 तक देखिए. तो इस तरह आपको बाकी के भी याद करने पड़ेंगे एटलीस्ट. ओके, मैं करने जा रहा हूं. सर कौन सा सम करने जा रही हो? मैं करने जा रहा हूं सम नंबर. पहला नंबर है SP1. लो, साधारण नंबर 1. और SP1 ये कहता है कि when water is boiled under a pressure of 2 atmosphere, the heat of vaporization is 2.2 into 10 raised to 6 joule per kg LV. And the boiling point is 120 degrees Celsius. Okay. At this pressure, 1 kg of water has a volume of 10 raised to minus 3 meter cube, and 1 kg of steam. Oh, ये volume of water है, ये volume of steam has a volume of 0.824 meter cube. अच्छा, what is the work done when 1 kg of steam is formed at this temperature? Oh, work done मांगा है. सम इतना बड़ा है कि कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि क्या मांगा है. Work done, don't you remember, work done is P delta V. Okay, that is P into volume of steam minus volume of water. प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेयर. तो 2 into 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. How much is volume of steam? 0.824 minus how much is volume of water? 0.001. You think you can manage this? 0.823. Okay, 0.823 मल्टीप्लाई बाय 2.02 करना है. अगर मैं सिर्फ 2 करूं तो 3 2 6, 2 2 4, 8 2 16, 1.646 into 10 raised to 5. या आंसर किसमें चाहिए? किलो जूल. 164.6 into 10 raised to 3. उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, या 164.6, क्योंकि 2.02 लिया होगा उन्होंने, मैंने सिर्फ 2 लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर इस तरह का आ रहा है. इज दिस अग्रीएबल पीपल? ओके ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं. मैं करने जा रहा हूं नंबर राउंड 1 का 4. राउंड 1 का 4 नंबर करने जा रहा हूं. क्या आप लोग आ रहे हैं मेरे साथ? आई एम टेकिंग दिस ऑफ. राउंड 1 का 4.
ओके, मस्त ग्राफ वाला सम है। क्या कहता है राउंड 1 का 4। अच्छा, डायग्राम बताया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ का, तो पहले हम भी बना लें। ये V0, ये 2V0, ये 3V0, और यहां से शुरू होता है, ये कितना है प्रेशर P0, और यहां पे प्रेशर 2P0। ओके, ग्राफ कहां से चला, A से B चला, फिर B से C चला, और C से यहां D आएगा। ओके, ये सब मार्किंग कर दिए ला। ओके, क्या चाहते हैं वो लोग? द पीवी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन, वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस ए बी सी डी। अच्छा भाई, टोटल वर्क डन चाहिए उनको। अच्छा, सबसे पहले फ्रॉम ए टू बी, भाई ए से बी तक, isn't this a constant pressure process? Yes, sir. And work done, we'll call it work from A to B, is P delta V, which is P VF minus VI. Here minus P0. Do you see ये कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर कितना है P0, फाइनल वॉल्यूम VO, इनिशियल वॉल्यूम 2VO। So work from A to B is minus PO VO। Yes, sir. अच्छा, अब B से C चलते हैं, from B to C। Constant volume लगा। वेरी गुड, B से C हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एंड ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना, 0, so work done is also 0। and finally from C to D again constant pressure identify करते हैं तो अच्छा होता है। work from C to D, pressure into change in volume which is P VF minus VI। भाई प्रेशर कितना है CD में, 2P0, 2P0. and final volume 3V0, initial volume V0। होने दे, 4 POVO, and total work, ये 1, ये 2, ये 3, work is equal to work from A to B plus work from B to C plus work from C to D, which is minus POVO plus 0 plus 4 POVO, 3 POVO, what's a? Yes, sir. C option. भाई ऐसा ऑलवेज से बी हो या सी, सानू की। ओके, आंसर तो आंसर है, बराबर, सी ऑप्शन देख लो। अब ऐसा ही मैं खतरनाक सम करने जा रही हूं, SP9। ओके, SP9 का डायग्राम वगैरह पेशे खिदमत है। 1 mole of an ideal gas undergoes a cycle 1 to 2 to 3 to 1 as shown. Initial temperature is 300 Kelvin. 1 to 2 is P is equal to AV. Process 1 to 2, it is P equal to AV. And process 2 to 3, 2 to 3 क्या है? PV is constant, and process 3 to 1 is what? P is constant। okay, क्या करना क्या है, नेट वर्क डन बाय द साइकिल। ओके, उन्होंने मेरे को हिंट भी दी है, नेचुरल लॉग 3 को 1.09 लेने का। ओके बाबूजी, अब सबसे पहले मतलब मुझे क्या करना है, 1 से 2 में कितना वर्क हुआ वो फाइंड करना है, 2 से 3 में कितना वर्क फाइंड करना है, 3 से 1 में कितना वर्क हुआ वो फाइंड करना है। एंड आंसर किस फॉर्मेट में है, पीवी में है कि टी में है, आर और टी 0 में है।
बरोबर, रेडी, चलो अब 1 से 2 चलते हैं, फ्रॉम 1 to 2। भाई मुझे वर्क फाइंड करना है, उन्होंने कहा है P इज इक्वल टू ए वी, दैट इज कांस्टेंट, सो वर्क डन, वर्क 1 कहता हूं मैं, वर्क 1 इज इंटीग्रल P dV, और वॉल्यूम कहां से कहां तक, VO से 3V0 तक, ओके। एंड P की जगह क्या मैं AV लगा सकता हूं, थैंक यू सो मच। ए को बाहर लिया, जरा तेजी पकड़ी, इट्स V स्क्वायर बाई 2, V0 से 3V0 तक, तो A बाई 2 कॉमन, 3VO का स्क्वायर 9VO स्क्वायर माइनस VO स्क्वायर, दैट्स 8VO स्क्वायर बाई 2, दैट इज 4AVO स्क्वायर। अब मैंने इनका आंसर देखा ना, तो आंसर R और T में है, ओके ठीक है। नाउ वी हैव, वी नो या वी हैव, ए तो P की जगह AV लगा दूं मैं, AV, पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, AV स्क्वायर इज म्यू आर T0, म्यू तो 1 मोल है, तो AVO स्क्वायर की जगह RTO लगा दूं, तो वर्क 1 मुझे मिल जाएगा ब्लू में 4RT0, ये मेरा पहला आया R और T0 के फॉर्म में, इसको मैं 2 कहता हूं। अब 2 से 3 चलते हैं। अब लोचा क्या है, 3 वाले का वॉल्यूम नहीं दिया कमबख्तों ने मुझे, सो मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। भाई 2 से 3 में PV इज कांस्टेंट, तो डोंट यू अग्री, PV इज कांस्टेंट, तो P2V2 इज P3V3, अग्रीएबल, ओके। तो P2 2 पे प्रेशर कितना है, 3 पो, 2 पे वॉल्यूम कितना है, 3 वो, 3 पे प्रेशर कितना है, पो, एंड वॉल्यूम 3, तो पो कट गया, V3 कितना आया जी, 9V0, क्या बात। एंड भाई जब प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसमें वर्क डन का इक्वेशन क्या रहता है, 2.313 म्यू आर टी। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां तक का उड़ा दूं, मैं वर्क 1 इज 4R2 रखता हूं, आई होप आपने लिख लिया हो कहीं इसको उड़ाने का, क्योंकि जगह की तंगी है ना भाई, जगह तंगी की वजह से वर्क डन लिखा पड़ी गलत पड़े, वर्क डन, तो वर्क 2 कहते हैं इसको, इज म्यू आर टी नेचुरल लॉ। अच्छा भाई लोचा है, भाई एक लोचा है छोटा सा, हमारे पास यहां का टेम्परेचर नहीं है 0.2 का, 0.1 का है, यहां T0 है टेम्परेचर, 0.2 का टेम्परेचर फाइंड नहीं किया है, तो फिलहाल रुक जाओ, मैं वर्क डन की पुंगी बाद में बजाऊंगा। मैं इसमें कहता हूं P1 V1 बाई T1 इज P2 V2 बाई T2। अच्छा 1 पे प्रेशर कितना, पो, वॉल्यूम कितना, वो, तो पो वो बाई टो इज 2 पे प्रेशर कितना, 3 पो, वॉल्यूम कितना 2 पे, 3 वो, ओवर T2, तो पो वो यही कट गया, तो T2 इज नॉट ओ, मतलब 9 टो। आप गलती से नॉटो मत समझ लेना, नॉटो गिरी है बाजार में। अच्छा वर्क डन वाले, क्योंकि इसके बगैर तो चाल ही नहीं चल सकते थे, म्यू आर T2, क्योंकि 2 से 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, म्यू आर T2 नेचुरल लॉग, भाई फाइनल वॉल्यूम कितना है, V3 बाय V2,
ओके, दिस इज वर्क 2। म्यू तो 1 है, तो R इंटू T2 कितना है, नॉट ओ। नॉट हो V3 9 वो, 9 हो V2 3 वो। दिया है। हाँ सर, और नेचुरल लॉग 3 की नेचुरल लॉग 3 दिया है 1.09, 1.29 तो 9R2 इंटू 1.09 9.81 है ना। यस सर 9.81 हाँ मेरा वर्क 2 भी आ गया जेंटलमैन। ओके, वर्क 1 मिल चुका है, वर्क 2 मिल चुका है। अब 3 से 1 आ रहे हैं अपने। 3 से 1 में प्रेशर कांस्टेंट है श्रीमान, तो प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। फ्रॉम 3 to 1। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, आइसोबेरिक प्रोसेस है। तो वर्क 3 इज P डेल्टा V, ई डेल्टा वी या फिर म्यू आर डेल्टा टी। म्यू तो 1 है, तो R इंटू डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एट 1 माइनस टेम्परेचर एट 3। 3 मतलब वही है, 2 ही है। सो R 1 पे कितना टेम्परेचर, 2, 3 पे या 2 पे टेम्परेचर कितना है, नॉट ओ। 90 हो भाई टो माइनस नॉट ओ, ओ माई गॉड, आरटी हो सर। RTO। तीनों मिल चुके, वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3। क्या अब तीनों को ऐड करके नेटवर्क फाइंड कर लूं। यस सर सो नेटवर्क W is W1 plus W2 plus W3। W1 कितना, 4R2 प्लस 9.81 R2, W3 minus 8 R2। So 9.81 minus 8 is 1.81, 1.81 plus 4, 5.81 R2, check। यस सर 5.8 डी ऑप्शन एब्सोल्युटली कोई शक, चेक करें। वी आर ऑल गुड सर जी। Oh, sure. जी 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 बताएं। सर ये तो हिंट दिया था कि ये बी इक्वल टू ए दिया था जैसा वो हिंट नहीं है, ना दियो नहीं नहीं वो हिंट नहीं है, वो तो प्रोसेस का बताया गया कि कौन से टाइप की प्रोसेस है। क्योंकि अगर अब 1 से 2 कौन से टाइप की प्रोसेस है तेरे को अगर पता ना हो तो तू कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, है कि नहीं। सो इट इज इंपेरेटिव कि उन्होंने हमको ये दिया हुआ है हिंट, हिंट नहीं प्रोसेस का नाम, बगैर प्रोसेस के नाम के हम आगे ही नहीं बढ़ सकते साहब। ओके हाँ सर वो ग्राफ देख के कैसे फिर हाँ, ग्राफ देख के तो कोई मतलब ही नहीं रहता। सो हमको प्रोसेस का नाम तो पता होना ही चाहिए कि भाई किस टाइप की प्रोसेस है। आई एम टेकिंग दिस ऑफ एंड आई एम गोइंग टू डू नंबर। भाई कौन सा नंबर, थोड़ा ही वक्त बचा है तो एक मस्त नंबर करें। कौन सा नंबर करें सर, रुको रुको रुको, मैं करने जा रहा हूं नंबर। ये मस्त है, राउंड 1 का 29, राउंड 1 का 29। मैं बाजू वाला भी उड़ा दूं, राउंड 1 का 29। ये ए डायबिटिक वाला फंडा है, ए डायबिटिक वाला फंडा है ये मस्त। द प्रेशर इनसाइड अ टायर इज 4 एटमॉस्फेयर, तो P1 इज 4 एटमॉस्फेयर at 27 degrees Celsius, that's 300 Kelvin. If the tire burst suddenly, अरे फूट गया तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया ना, फूट गया तो what will be the new temperature? So it's an adiabatic process. For an adiabatic process, अच्छा उन्होंने और कुछ कहा है, उन्होंने गामा को 7/5 लेने को कहा है, तो हम लेंगे। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर और टेम्परेचर का रिश्ता क्या कहलाता है,
P1 minus gamma T raised to gamma. So P1 1 minus gamma into T1 gamma is P2 1 minus gamma into T2 gamma. बराबर है. मुझे T2 चाहिए. T2 raised to gamma is P1. ये P2 उतरेगा ना नीचे. P1, P2, the whole raised to 1 minus gamma. सर हम उसको yes. राइट वे. तो अब ये सिचुएशन आके खड़ी हुई है एंड अब मैं गामा की वैल्यू भी पुटअप कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो T2 रेस टू, अगर आप चाहें कोई और ऑप्शन है क्या? हम गामा से इसको कैन वी टेक गामा कॉमन और समथिंग लाइक दैट? सर हमको फिफ्थ रूट निकालना पड़ेगा. नहीं नहीं, हम निकालेंगे नहीं फिफ्थ रूट वगैरह, डोंट वरी अबाउट दैट. हम यहां पे फिलहाल फिफ्थ रूट के चक्कर में नहीं है. P1 कितना है? 4 ओवर P2 कितना है? 1. मैं गामा को उड़ाने का कोई तरीका सोच रहा हूं. सो 4/1 इज 4. सो T2 raised to 7/5 is 4/1, that is 4. 1 minus 7/5 into 300 raised to 7/5. जो भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो कर लेंगे. 1 minus 7/5 is minus 2/5. Agreeable? हाँ सर agreeable. अगर आप चाहें तो 1/5 वाला सीधा उड़ा सकते हैं, ठक ठक ठक. सो T2 raised to 7 is 300 raised to 7 into 4 raised to minus 2. And now take the 7th root. So T2, take 7th root, is 300 into 4 raised to minus 2/7. Is this something of an answer that you are getting? या उन्होंने 4 का यहां 2 स्क्वायर किया है, क्या किया है? Is that something of an answer? ये अरे आंसर है सीधा 300 into 4 raised to minus 2/7. आ तो क्या आप लोग भी देख रहे हो? हाँ सर. आंसर आ गया. हमने 5 5 5 उड़ा दिया क्योंकि कॉमन था, उड़ा दिया. फिर बचा 7 7 और यहां -2, तो मैंने 7th रूट ले लिया. इन शॉर्ट सबको डिवाइड बाय 7 कर दिया, तो ये उड़ गया, ये उड़ गया और ये 2/7 आ गया. मैं सोचा कुछ करना पड़ेगा, पर मैंने आंसर में देखा तो यही था कि ये आंसर है हमारा. आज से जाने मन आंसर है तुम्हारा. अच्छा, मैं राउंड 1 का 42 भी करना चाहूंगा अगर आपको दिक्कत ना हो. है दिक्कत कोई? ग्राफिकल है, ग्राफिकल है तो एंड लॉजिकल है, जैसे हम कंसेप्चुअल कहते हैं वैसा है. सो राउंड 1 का 42 क्या कहते हैं? राउंड 1 का 42 ग्राफ बना है पीवी का. एंड ग्राफ में 3 चीजें हैं. पहला प्रोसेस ये रहा 1, भाई देखने में आइसोबेरिक लग रहा है. ये रहा 2 और ये रहा 3. तो अपने को उन्होंने पूछा है, अच्छा बताया भी है, गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम V0 to 2V0 under 3 different processes. Process 1 is isobaric, process 2 is isothermal, and process 3 is adiabatic. Okay, very well. So ये isobaric 1 is isobaric, 2 is isothermal, and 3 is adiabatic. Okay, क्या चाहते हैं वो लोग? Let delta U1, delta U2 and delta U3 be the change in internal energy of the gas in these 3 processes. Then भाई सबसे पहली बात, अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करना है तो आपको ग्राफ देखना पड़ेगा. जी जी जी, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है क्या है वो देखना पड़ेगा आपको. आपको अंदाजा आ रहा है कि इसका 1 का इंटरनल चेंज इन एनर्जी डेल्टा U1 है, ये डेल्टा U2 है और ये डेल्टा U3 है. अच्छा, फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस
आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, सो आपका डेल्टा U1 जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल्टा U1 पॉजिटिव। अब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, भाई कहीं आप भूल तो नहीं गए, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो डेल्टा U2 इज हाउ मच? 0। टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, पर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी 0 है। एंड फॉर ए डायाबैटिक, आपको याद है मैंने बताया था T इंटू वी रेस टू गामा माइनस 1, so T is proportional to V over 1 over V gamma minus 1. Volume increases, then temperature decreases. And temperature decrease होने पर change in internal energy क्या होगा? नेगेटिव। तो आपने देखा डेल्टा U1 पॉजिटिव है, डेल्टा U2 0 है एंड डेल्टा U3 नेगेटिव है। तो अरेंज करो इसको नॉर्मल कोर्स में किस तरह अरेंज होगा। सो डेल्टा U1 ग्रेटर देन डेल्टा U2 ग्रेटर देन डेल्टा, चेक दी ऑप्शंस एंड एंजॉय योरसेल्फ। बराबर है। ओके गाइस, तो कुछ एक न्यूमेरिकल्स बाकी रह गए, बट नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट टाइम हीट इंजन, हीट पंप और कार्नो इंजन करके हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल दैट टाइम यू स्टे बड़ी, ऑलराइट, कीप डूइंग स्टफ, ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।